Okay, time to solve some questions. Rajiv is a middle level manager. He keeps all his subordinates under a lot of discipline. His employees, however, complain of wastage of time and efforts as they feel nothing is being assigned in a proper way and a proper place. Also, no proper schedule is made for working. Which principle of management is violated here? Next question. Paka Employment is a company which takes care of the fact that the confidence of the employees should always be at its peak. For this reason, they give surety to their employees for employment for a minimum fixed tenure of time. Which principle of management is followed here? So ये ऐसी कंपनी है कि ये बोल रहे हैं कि इनके लिए एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. मतलब कि इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके लिए लॉयल रहें, ये इनके लिए सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है. तो इसलिए क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को एक श्योरिटी दे देते हैं कि जब हम आपको रिक्रूट करेंगे तो एक फ़िक्स टाइम के लिए रिक्रूट करेंगे ही करेंगे. मतलब पहले बता देते हैं कि आपको कम से कम 5 साल के लिए या 2 साल के लिए रिक्रूट करेंगे हम. तो ये कौन से प्रिंसिपल में पढ़ा था हमने? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. इफ़ यू कैन रिकॉल that we studied these words like proper place and proper time, proper way, proper place. In which principle did we study these words? Principle of order. So we will say that the principle of management which is violated here is the principle of order, which says that everything has a place and everything should be at its place. A floor manager of a mall is very capable as he utilizes all the functions of management. He lays stress on developing mutual trust and spirit of cooperation among the employees. Under his guidance, the employees admit that they learn a lot and are able to meet their targets. This has led to increase in their salaries. Identify the principle of FAOL followed by the floor manager in the above case. FAOL का हमने जो लास्ट प्रिंसिपल पढ़ा था उसमें हमने कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़े थे, कोऑपरेशन की स्पिरिट होना, ब्रदरहुड होना, एक साथ सब काम करेंगे तो उनके टारगेट्स मीट हो सकते हैं. तो वो प्रिंसिपल था एस्पिरिट डी कॉप्स. बट अगर यहाँ पे ये ना लिखा होता कि प्रिंसिपल ऑफ फेयल ही बताना है तो हम इसमें कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म भी लिख सकते थे जो कि टेलर का प्रिंसिपल है. बट यहाँ पे क्योंकि स्पेशली मेंशन करा है कि फेयल का ही प्रिंसिपल बताना है तो वो होगा एस्पिरिट डी कॉप्स. Next question. The plant superintendent of a company is very sad. When he was on leave, he was expecting his subordinates to take the remaining work to the finish. However, he finds a new way of dealing with this problem. He develops a system of suggestion building from the side of workers. For this, a suggestion or complaint box is to be kept where the workers can drop their advice and hence take steps from their side. Which principle of management has been implemented here by the plant superintendent? तो ये तो हमने एक वीडियो में देखा ही था, सजेशन बॉक्स डाल रहे थे. किस में आता है सजेशन बॉक्स? और जो मैनेजर है कहाँ गया ही डेवलप्स सिस्टम ऑफ सजेशन बिल्डिंग फ्रॉम द साइड ऑफ वर्कर्स. तो मतलब कि वर्कर्स जो भी सजेशन देना चाहते हैं, मैनेजर्स उसको प्रमोट कर रहे हैं, लाइक उसको मोटिवेट कर रहे हैं. तो ये कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था? इनिशिएटिव, जो कि फ्यूल का एक प्रिंसिपल है. सुरेश वर्क्स इन अ बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ईच बल्ब विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड इज ऑफ स्टैंडर्ड साइज एंड क्वालिटी. अब तो आपको इसी वर्ड से समझ में आ गया होगा यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टैंडर्ड साइज एंड क्वालिटी से. कल ही जो हमने एक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट पढ़ी है. फर्दर, इफ देर इज एनी अनरिक्वायर्ड टाइप ऑफ बल्ब मैन्युफैक्चर्ड देन इट्स प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड. फर्दर, if there is any unrequired type of bulb manufactured, then its production is stopped. Last month, when the company came to know that 10-watt bulbs were no more liked by customers, their production was stopped. तो मतलब जैसे ये 10 वोट्स वाले जो बल्ब हैं इनके वो चल नहीं रहे आजकल ज़्यादा मार्केट में, तो उन्होंने उसका प्रोडक्शन ही रोक दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि फालतू में इसके ऊपर क्यों पैसे वेस्ट करने हैं, लेबर भी लगेगी, रॉ मटेरियल भी लगेगा. He works in the purchase department. His job is to purchase the filaments required to make bulbs. This time when he purchases the filament,
he gets the instruction from the seller that some special care needs to be taken in the first hour of fixing the filaments inside the bulb. Suresh knows this information should be given immediately to the production department before the assembling process starts. तो जैसे जो मार्केट में इसके जो प्रोडक्ट जाते हैं तो वहाँ से इसको ये बोला गया कि जैसे ही आपको मतलब जैसे ही आप तो ये फिलामेंट फिक्स करते हो बल्ब के अंदर तो आपको इसमें स्पेशल ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो सुरेश को लगता है कि ये तो इन्फॉर्मेशन जल्दी से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर असेंबलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया मतलब बल्ब बनना अगर स्टार्ट हो गया तो फिर तो मतलब वो चीज़ हो नहीं पाएगी जो उन्हें करनी थी. However, he finds that his company's policies only allow him to give the message to his immediate boss, who will further pass this message to his boss. The passing of this message will continue till it reaches the desired position in the production department. तो उसे भाई लेकिन ये पता चला कि कंपनी की तो ऐसी पॉलिसी है कि पहले वो अपने बॉस को मैसेज देगा, फिर उसका बॉस दूसरे को मैसेज देगा, मतलब पूरी एक चेन चलेगी कम्युनिकेशन होने के लिए. Which technique of management is followed here and also named the principle of management followed here by the company? Which option is now available to Suresh since the company is not allowing him to interact with the concerned worker in the production department? अब देखो ये जो फर्स्ट लाइन थी, ईच बल्ब विच इज मैन्युफैक्चर्ड इज ऑफ स्टैंडर्ड साइज एंड क्वालिटी, यहाँ पर है टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है. और ये जो है कि इफ देर इज एनी अनरिक्वायर्ड टाइप ऑफ बल्ब मैन्युफैक्चर्ड देन इट्स प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड. मतलब अगर कोई चीज़ चल नहीं रही है मार्केट में तो उसका प्रोडक्शन रोक देते हैं. मतलब कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा रेंज नहीं रखते अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. ये टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है. अब वो क्या पूछ रहे हैं, नेम द प्रिंसिपल मैनेजमेंट फॉलोड हियर बाय द कंपनी. यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा था कि भाई जो कम्युनिकेशन है पूरे प्रोसेस के थ्रू जाएगी, तो स्केलर चेन प्रिंसिपल. और ये जो लास्ट पॉइंट है कि अब उसके पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है, जैसे कि कंपनी उसे अलाउ नहीं करती है कि इंटरैक्ट कर सके वो किसी भी वर्कर से दूसरे डिपार्टमेंट में. तो यहाँ पर स्केलर चेन की जो एक्सेप्शन थी हमने पढ़ा था गैंग प्लैंक, यहाँ पे वो अप्लाई होगा, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई इमरजेंसी होती है तो मतलब वर्कर्स आपस में या फिर कोई भी एम्प्लॉई एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन.